Hello everyone, I hope you're doing well. It's Anshika this side and I hope you are preparing for your board exams and your maths exam is over now and it's your last exam now, that is of AI, IT or maybe computer applications it could be. So उसके बारे में we will be talking in detail and we will be getting to know कैसे हम इसके लिए prepare करें so that we can score 95 plus marks in this particular subject. Okay, yeah. I talk about myself. I've scored 90 marks in like IT, information technology, but because I didn't study it for the whole year. I didn't give any exam because I didn't knew I had that particular subject. Also, like I got to know about that in very end that it is compulsory to have that particular subject, right? It's compulsory to give the exam and you have to take this because I didn't actually wanted to take this particular subject. So I got 90. I studied for one day only and you have 7, right? You have 7 days, so you can definitely score 95 plus marks in this particular subject, okay? Because I scored 90 in one day, right? Not even in one day, like I didn't study very seriously about this. I think you can do it too, okay? Yeah. So let's get started with the video and get to know in detail what we can do, okay? Yeah. सो अगर हम बात करें कि आप वैसे आईटी और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रह सकता है बिकॉज टॉप 5 सब्जेक्ट्स आपके मोस्टली जुड़ते हैं, बेस्ट 5 सब्जेक्ट. सो अगर आपको लग रहा है आपका मैथ्स का एग्जाम अच्छा भी नहीं गया था या फिर कोई और सब्जेक्ट ऐसा था जो आपका अच्छा नहीं गया था, यू कैन स्टिल add your IT का marks in that particular exam result and you will get your percentage according to best of 5 rule. Okay, yeah. सो अब अगर हम इसको थोड़ा और देखें डिटेल में, लाइक बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस, योर एग्जाम पैटर्न, राइट? अगर हम इसकी बात करें एग्जाम पैटर्न की, सो हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए इज 10 मार्क्स का होता है एंड सेक्शन बी हमारा 40 मार्क्स का है, राइट? सो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट टॉकिंग अबाउट आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसमें पार्ट ए रहने वाला है हमारा जिसमें कि आई हैव रिटन सम चैप्टर्स लाइक द चैप्टर्स नेम, सो आई विल बी टेलिंग यू दैट. ओके, या पार्ट ए इज यूनिट 1 इज कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें से आपके मार्क्स का लाइक कुछ भी नहीं आता बिकॉज वो प्रैक्टिकल में हो चुका है. देन यूनिट 2 दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. या सो इट इज 3 मार्क्स का ये चीज है. देन वी हैव आईसीटी स्किल्स दैट इज ऑफ 3 मार्क्स अगेन एंड देन वी हैव यूनिट 4 दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो कि 4 मार्क्स का है एंड देन वी हैव ग्रीन स्किल्स. इसमें से भी एज सच कोई क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आता है. ओके, सो दिस इज द थिंग एंड like this is common, the part is common for AI students also. artificial intelligence जिन students के पास है उनके लिए ये portion common है. that part is common for both AI and IT. Okay, so now talking about the part B for IT, that is unit 1 is digital documentation, that is worth 8 marks. 8 marks is a huge it's a huge like number. I think it's good. Then we have electronic spreadsheet worth 8 marks. Then we have unit 3 that is database management. It is of 12 marks and it is very easy. So I think it's a big number. You can get 12 marks in within no time, okay? Because it's easy. Then we have unit 4 that is web applications and security. And yeah, so now we have it is of 10 marks. Now the total is 40 marks and I think it's over. लाइक द सिलेबस बाइफर्केशन का ये पार्ट बी है एंड पार्ट ए पार्ट बी को मिला के हमारा पूरा लाइक 50 मार्क्स कवर अप हो जाता है. अगर हम बात करें अब एआई स्टूडेंट्स की, सो उनके लिए पार्ट ए का जो सिलेबस है, आई एम लिंकिंग इट हियर, लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो या दैट्स ऑल, दैट इज गोइंग टू बी द सिलेबस. सो आपका ये सिलेबस रहने वाला है. पार्ट ए बहुत सिंपल है, आप इसको लाइक हाफ आवर में कंप्लीट कर सकते हो. 1 आवर भी आपको पूरा पार्ट ए कंप्लीट करने में नहीं लगेगा. ओके, सो आई एम लिंकिंग अ वीडियो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप उसमें से लाइक वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं. यू नो व्हाट, कैन आई टेल यू फैक्ट? आई स्कोर 90 मार्क्स इन आईटी. आई डिडंट इवन हैव अ बुक ऑफ आईटी. ओके, like I didn't even purchase the book of IT because as I already told ke like I didn't really wanted this particular subject, right? So I never ever studied this like normally. I just did it one day before exam and I scored 90. I just watched some videos and I did it. So I think अगर आपके पास book है तो it's well and good. अगर नहीं है तो भी you can do it with videos only. Okay, so you just need to do that
एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज मास्टर द थियोरेटिकल कंसेप्ट्स. जो भी थ्योरी पोर्शन आपका है वो सब कुछ अच्छे से पढ़ो. वीडियो अगेन चैप्टर 2 की भी लाइक ओके पार्ट बी की भी वीडियो आई विल बी लिंकिंग डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. सो आई थिंक आपको उसको अच्छे से देखना है एक बार, एंड आपको थ्योरी पोर्शन भी अपना अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, राइट. देन द थर्ड थिंग इट्स गोइंग टू बी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए लास्ट ईयर का, आई कैन also link it down in the description box. So आप सिर्फ एक पेपर प्रैक्टिस करो, that is going to be the last year previous year question of batch 2023 and 24. Okay, सिर्फ एक साल का previous year question check out करो, देखो उसमें कैसे questions थे. एक बार analyze करो if you are able to do it. Like after completing the syllabus you need to do that. Like first the videos of part A and part B that I'm linking down in the video description box, you need to check them out. आपको उन्हें पढ़ना है, उनमें से समझना, and then आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दैट आई एम लिंकिंग डाउन. ओके, उसके बाद आपको एक सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, दैट अगेन इट्स गोइंग टू बी फॉर द ऑफिशियल ईयर ऑफ 2024-25. आपके बैच का जो सीबीएसई है सैंपल पेपर दिया होगा, आई बी यू नीड टू डू दैट. ओके, सो आपको वो एक बार प्रैक्टिस करना है, and I think it's good. You're good to go. You can easily score 90 plus marks, 95 plus marks by doing only these things. Okay, and आपके पास तो फिर भी 7 दिन है. I did it in 1 day. सो आई थिंक इतना ज्यादा लाइक टफ कोई सब्जेक्ट है नहीं. एंड या और उसके बाद अगर हम देखें तो लाइक आई यू शुड अगर मैं बोलूँ कि लाइक आपको प्रॉपर आई स्कोर 90 बट आई इफ यू वांट 95 प्लस, if you want 98, 99 or even a perfect 100 in this particular subject, so I think आपको ये strategy follow करनी चाहिए. 3-2-1 rule, right? According to this rule, it's that you will be revising. आपने एक चैप्टर आज पढ़ लिया, आप उस चैप्टर को 3 बार रिवाइज करेंगे. आप लाइक आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए या तो वीडियो देख ली, राइट, उसको आप 3 बार रिवाइज करेंगे. नोट्स को जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं उसको, राइट, 3 बार आप रिवाइज करेंगे. कैसे? फर्स्ट टाइम पूरा डिटेल रिवीजन, लाइक पूरा डिटेल आप जो पढ़ने वाले हैं चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. देन सेकेंड टाइम व्हाट यू आर गोना डू इज कि जो भी स्पेसिफिक पोर्शंस पढ़ोगे, जो भी आपने अंडरलाइन करी थी चीजें या जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही थी, या फिर नॉर्मल स्किमिंग पूरे चैप्टर की आप वो करने वाले हैं. एंड थर्ड टाइम में यू विल बी डूइंग सिलेक्टिव रीडिंग ओनली. जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आप भूल जाते हैं, आपको टफ लग रही है, राइट, जो नेम्स आप भूल जा रहे हैं या फिर यू नो एनीथिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनीथिंग लाइक दैट, आप चीजें भूल रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट कीज और एनीथिंग, राइट, वो चीजें आप थर्ड रीडिंग में अपनी पढ़ने वाले हैं. एंड देन यू विल बी डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेकंड द सैंपल पेपर. दैट्स ऑल यू नीड टू डू इन आईटी. And if you need any other video, if you have any other query or problem, I'm here for you. You can definitely ask me in the comment section and I'll be replying to that. And all the videos will be given to you in the description. So in the description box. So please check it out and subscribe to my channel. It's your channel actually. You can do anything you want to and ask me anything. I will be making a video. I'll feel free to ask any doubts if you particularly have anything to ask. Okay. सो एंड नाउ आपकी अब 10th खत्म हो जाएगी बिकॉज ये आपका लास्ट सब्जेक्ट है आपका भी, है ना. सो इसके बाद आप आराम से चिल करना, होली भी अपने बीच में एंजॉय करो. मैं तो नहीं बोलूंगी कि इतना ज्यादा सच डीप पढ़ते रहो. आई थिंक पढ़ो, चिल करो, होली भी एंजॉय करना. एंड उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपना फिजिकल फिटनेस और एनीथिंग जिस चीज पे भी आपको वर्क करने का मन था, आपको ऐसी कोई स्किल डेवलप करनी है 11 से पहले, 11 शुरू करने से पहले, यू कैन वर्क ओवर दैट. एंड फिर 11th स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना. लाइक आपको एग्जैक्टली क्या करना है, करियर पाथ के अकॉर्डिंग यू नीड टू डिस्कस एंड यू नीड टू नो अबाउट दैट. हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स जानकर अच्छे से लाइक 11th चूज करना, स्ट्रीम चूज करना 11th में. एंड आई थिंक इट्स गुड टू गो. एंड उसके बाद लाइक सिलेक्शन के बाद आई विल बी हेल्पिंग यू. ओके चिल, आई विल बी हेल्पिंग यू इन सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम. उसके बाद वी विल बी also we will be starting class 11 ka syllabus. So don't forget to subscribe to my channel. And if you feel any other query, if you have anything to ask, so feel free to ask and I'm always there for you. Okay, yeah, so that's all.